Good afternoon to all of you and welcome to my lecture. And today we are going to start a new chapter, and that obviously the name of the chapter itself says states of matter, and specifically they are saying we are going to study gas and liquid. We know there are 5 states of matter. Okay, we know solid, liquid, gas, plasma, and Bose-Einstein condensates. We have learnt about this. Correct? Out of that, in this semester, we have to study in much detail about gas and liquid. Rather say, most of the topic in this chapter will be dealt in gas. In this chapter, our first topic will be introduction and states of matter. We have seen there are different states of matter, why they are gas, why they are solid, and what is the relationship between the states of matter and their intermolecular attractive forces. दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर अट्रैक्शन होता है तो उससे स्टेट्स ऑफ मैटर में कैसे डिफरेंस होता है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक और दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन मच डिटेल. तो वो बाद में करने वाले. आफ्टर दैट we are going to study about different gas laws. हम क्या पढ़ाई करने वाले? Different gas laws which involves Boyle's law, absolute zero temperature, that means Charles law, these two go together, and Gay-Lussac's law, and one more standard temperature pressure पे Avogadro's law, then combining gas equation. These all are, I can say, gaseous laws, and on the basis of that we are going to derive one ideal gas equation, and from that ideal gas equation we are going to study the different values of constant R. After that we are going to study about concept of ideal gas, what do we understand by ideal gas, and there are different deviations in ideal gas behavior. Those deviations we are going to study. We are going to talk about the critical temperature and liquefaction of gases. We are going to talk about the kinetic energy and velocity of molecules, and apart from that, two important but simple law, Dalton's law of partial pressure and Graham's law of gaseous diffusion. And we are going to do with Avogadro's hypothesis and little bit topic of liquid. Till here 97% topics belongs to gas, and the last topic belongs to liquid. Our first topic, it does talk about states of matter and intermolecular attractive forces between different kinds of molecules. There are certain intermolecular attractive forces रहते हैं. Suppose if we have a substance and in that substance there are certain molecules are there. Between these molecules, what kind of attraction exists, that attraction is going to determine the state of matter. अभी molecules के बीच में there are, let me make you clear about two terms which I am going to use, or in chemistry which we use. One is called intermolecular forces and second is called intramolecular forces. इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब ये होता है between two molecules or between more than two molecules, between molecules. And once if we talk about the intra का मतलब होता है within a given molecule. एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो भी हो रहा है, जितने भी फोर्सेस के बारे में बात करेंगे उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस. फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे लेट्स से के ये एक हाइड्रोजन का आइटम है और ये एक क्लोरीन का आइटम है. यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड होता है. यहाँ पे बॉन्ड होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, दे शेयर वन इलेक्ट्रॉन ईच. तो ये जो बना, ये मेरे पास जो बन रहा है वो एक मॉलिक्यूल बन रहा है. क्या बन रहा है? ये HCl का एक मॉलिक्यूल है. उसके आजू बाजू में यहाँ पे
ओके, काफी दूसरे HCl के मॉलिक्यूल से। तो जब मैंने ये वाला बॉन्ड बताया वो विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बन रहा है, उसकी बात कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, करेक्ट और नॉट, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। बट ये दो मॉलिक्यूल HCl के हैं या इसके बीच में या इसके बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आवर टुडेज टॉपिक is intermolecular forces, intermolecular attractive forces, not intramolecular. Intramolecular we are going to study in chapter number 1. Okay, we are studying a different sequence. I've not started with the chapter 1. I started with chapter 3 and then chapter 2 and then I'll go to chapter 1 afterwards. Barabar. So that's intramolecular forces. But right now let us understand this. जो ये वाले बॉन्ड्स होते हैं या तो इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, वो नॉर्मली केमिकल बॉन्ड होते हैं। कौन से होते हैं, केमिकल बॉन्ड होते हैं। ओके, बट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स जो इंट्रामॉलिक्यूलर होते हैं वो केमिकल बॉन्ड नहीं होते, दे आर नॉट केमिकल बॉन्ड। ओके, पहली बार वांडरवाल करके एक साइंटिस्ट था, ओके, वांडरवाल ने सबसे पहली बार इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है या बॉन्ड नहीं अट्रैक्शन होता है उसके बारे में डिस्कशन किया, जिसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। और इसीलिए इसको ये जो स्टडीज है जो हम बात करने वाले बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स जो फोर्सेस होने वाले हैं उसको हम वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। आर यू फॉलोइंग दिस? ओके, नाउ एक चीज याद रखना, जो वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं या तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो केमिकल बॉन्ड की कंपैरिजन में बहुत ही छोटे होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं, बट काफी काम के। स्टिल द वैल्यूज इज वेरी लेस बट दे आर स्टिल, वी कैन नॉट से इट्स इनसिग्निफिकेंट, काम के नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। लेट मी एक्सप्लेन यू अदर वे। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। सपोज हमारे पास दो स्टूडेंट है, लेट्स से मित एंड नील, बराबर है कि नहीं? I hope I have written correct spell. No, MIT. Okay, ये meet. Okay, okay, ठीक है, meet and Neil. Now इसके okay, दोनों के पास काफी सारे पैसे, एक दिन साथ में जा रहे हैं, okay, and okay, मीट बोलता है तुमको पता है मेरे पास 100 रुपये है। नील बोलता है मेरे पास 2 करोड़ रुपये है। आई थिंक सो, ओके, कुछ ज्यादा ही लगा दिया मैंने, ठीक है, 2 करोड़ रुपये। सो ऑल ऑफ अस वी अंडरस्टैंड कि भाई ऑब्वियसली इसकी वैल्यू इसके सामने कुछ नहीं है, करेक्ट, इनसिग्निफिकेंट, कुछ लगता ही नहीं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ओके, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ऑब्वियसली इतने सारे पैसे हाथ में लेके वो घूमेगा नहीं बंदा, तो वो लॉक एंड की में है, तिजोरी में है, दोनों साथ में जा रहे हैं, भूख लगी है, वड़ा पाव खाना है, किसके पैसे काम में आने वाले हैं? ओके, ये 100 रुपीज दो, इसके सामने इसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी भूख जब लगती है तो वही काम का है। That 2 crore rupees is not worth over there, though its value is very less, but it does make a difference. Correct? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Are you following me? एंड अगर डेफिनेटली कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ओके, इसका मतलब बनता है, करेक्ट? सी, both of them they have their own values, okay, one is less value, second is more value, but still they have their own identity and it's required. Same thing, यहाँ पे जो केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं उसकी वैल्यू काफी हाई होती है और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड की वैल्यूज काफी लो होती है, या तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर भी वो काफी काम के, still they are very important. Okay, so let's see from your book, what does our book says? Very weak attractive forces existing between molecules are called intermolecular attractive forces, van der Waals attractive forces. van der Waal ने सबसे पहले ये बताया था, in fact it is universal
एंड एग्जिस्ट इन ऑल द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। हर एक जगह पे आपको देखने को मिलने वाला है, एवरी जगह। ओके, हाउएवर दिस टाइप ऑफ वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस आर हिडन अंडर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। उसकी वैल्यू जो होती है कम होती है, तो उसके सामने कुछ बड़े के सामने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, फिर भी काम के। बाय द वे, वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। ओके, 4 फैक्टर पे वंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड रहता है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट, कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड एवरेज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। सी, यहां पे क्या बताया जा रहा है कि जो ये वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वीक है, इट डज डिपेंड अपॉन 4 फैक्टर्स। शेप, ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया एंड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। मैं आपको समझाता हूं। सपोज मेरे पास यहाँ पे ओके ऐसे मॉलिक्यूल्स है, ये एक टाइप के मॉलिक्यूल्स है, ऐसा वाला नहीं होता है। ओके, एंड दूसरे ऐसे वाले। करेक्ट ना, जरा ध्यान से देखना। अगर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक में आते हैं तो इनका देखा आपने, शेप देखा, लीनियर है। लीनियर मतलब थोड़े से ओके फ्लैट है, एंड द अदर वंस आर राउंडेड अप। सो जब ये एक दूसरे के नजदीक में आते हैं तो ओके उनके बीच में जो कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया हो रहा है, जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया। दोनों का डिफरेंस आप देख पाते हो यहाँ पे आराम से। इसके लिए कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया इतना है, इसके लिए इतना है, इसके लिए इतना है, जबकि इसके लिए, कैन यू सी दैट? तो सिंस कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है will be more than this one। तो यहां पे 2 पॉइंट एक साथ हमने लर्न किया। कौन सा पॉइंट लर्न किया? शेप एंड द कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया। जितना ज्यादा ओके शेप डिपेंड रहता है, लीनियर है तो ज्यादा कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया रहेगा, इसलिए ओके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा रहता है, उसके अंदर कम रहता है। करेक्ट और नॉट? आर यू गेटिंग मी? एट द सेम टाइम उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, आप आराम से फाइंड कर सकते हो। जैसे कि देखो इसके अंदर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सपोज इसके अंदर इतने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके, एंड ये मॉलिक्यूल में इतने हैं। तो कैन यू टेल मी कि जब इसका जो ये न्यूक्लियस है और इसका जो न्यूक्लियस है, या तो इसका जो न्यूक्लियस है, जब इसको अट्रैक्ट करेगा तो कितने सारों से अट्रैक्ट करेगा, और जब इसको अट्रैक्ट करेगा तो कहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते। सो इफ यू हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, then force of attraction is more, the wonderful force of attraction is more। and एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमको एक क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया कि भाई P4 व्हाइट येलो फॉस्फोरस जिसको बोलते हैं, एंड सेकंड है हमारे पास S8 रोम्बिक सल्फर बोलते हैं। बोलते P4 का मेल्टिंग पॉइंट रोम्बिक सल्फर से लेस है, क्यों? समझाइए। दे may ask you give reason or explain why melting point of phosphorus, yellow phosphorus is less than the melting point of rhombic sulfur। तो बहुत ही सिंपल है भाई, फॉस्फोरस के एक एटम के पास 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो ऑल टुगेदर टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 60 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज 4 फॉस्फोरस के एटम एक मॉलिक्यूल के पास। सल्फर के एक एटम के पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 8 एटम्स ऐसे एक मॉलिक्यूल के अंदर। कितने एटम्स है? 8। 16 8 जा कितना हो गया? 128। सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन S8 के पास ज्यादा है, सो वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है। आपको पूछते हैं गिव रीजन में, सिंपल गिव रीजन, तो हम देखते हैं यहाँ पे। देखो These factors affect the physical properties of substance। वंडरवल फोर्स से फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। अभी मैं बात कर रहा था जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आता है। एग्जाम्पल में पूछा, मैं बता रहा था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ येलो फॉस्फोरस इज लेस देन दैट ऑफ रोम्बिक सल्फर। उसका रीजन, द रीजन फॉर दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। येलो फॉस्फोरस is a molecule
having 4 phosphorus atom and it has 4 into 50 16 electrons. Rhombic sulfur is molecule having 8s and it has 128 electrons. So thus the size and contact surface area of the phosphorus is less than the rhombic sulfur. Hence it has more melting point. Can you see this? Correct or no? Yes or no? By the way, there are 3 kinds of van der Waals force of attraction we have to study. One is called dispersion force or London forces. Second is called dipole force, and third is called dipole induced dipole forces. We are going to study them in detail, but before that, let me save this.